Gujarat's Rajkot as well. At least 27 people, according to the updated reports, were unfortunately killed after a massive fire erupted at a gaming zone in Gujarat's Rajkot as well. Multiple fire tenders were dispatched to the scene, according to the reports, and efforts are currently ongoing to extinguish the blaze as well. The cause of the fire has not yet been ascertained. The administrator and manager of the gaming zone have been wrapped up and arrested as well, according to the investigation. Prime Minister Narendra Modi, in fact, and various other senior opposition leaders have already expressed their grief over the incident that transpired. Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel has announced a compensation of ₹4 lakh to the families of the deceased, and ₹50,000 will be given to all of those who got injured in this unfortunate news. Now, Chief Minister has also ordered a special investigation team probe in this particular matter, is what we are learning according to the updated reports. अगर बात की जाए तो राजकोट वेस्ट में जो टीआरपी गेम जोन आया हुआ है कि जो इंडोर और आउटडोर गेम जोन है, वहां पर तकरीबन शाम के 5 बजे के बाद ये आगजनी की जो घटना थी वो सामने आई थी, और उसी के चलते हुए राजकोट के जो तमाम जो फायर ब्रिगेड है वो यहां पर घटनास्थल पर हाजिर हो चुके थे। अगर बात की जाए टीआरपी जोन की, तो टीआरपी गेम जोन है जो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम जोन है। फिलहाल आज वीकेंड का दिन था, सैटरडे का दिन था, तो जिस वजह से काफी मात्रा में बच्चे थे वो यहाँ पर अपने जो पेरेंट्स है उनके साथ वो यहाँ पर खेलने के लिए आप पहुंचे थे। उनको शायद पता भी नहीं होगा कि आज वो जिस गेम जोन में जा रहे हैं वो गेम जोन नहीं बल्कि उनका मौत का जोन है। इस तरह की घटना है वो सामने आएंगे, और अभी भी जो दृश्य है वो सामने आ रहे हैं। अभी तक 8 जितनी डेड बॉडी है उनको बाहर निकाला गया है। ये आंकड़ा है वो अभी और भी बढ़ सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर राजकोट शहर पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव, राजकोट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है प्रभु जोशी, वो भी यहाँ पर थे। साथ ही में डीसीपी, एसीपी सहित की तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर थे, और अभी भी जो ये फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी है वो बात कर रहे हैं। कितने बजे आपको ये कॉल मिला था? हमको करीबन 4:30-5 बजे के आसपास मिला था। और फायर ब्रिगेड का जो रिस्पांस टाइम था, रहीम भाई, फायर ब्रिगेड का जो रिस्पांस टाइम था वो कितने का था? इस वर्ष तात्कालिक निकल के कालावर रोड, मऊडी रोड, रामावीर फायर स्टेशन, कनक रोड फायर स्टेशन, कोठारिया रोड फायर स्टेशन, बेड़ीवा सब स्टेशन की गाड़ियां यहाँ आ गई थी। और अभी कितने फायर विभाग के जो कर्मचारी और जवान है वो अभी यहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है? A breaking update now coming in with regards to the case of Gujarat's Rajkot. Now the Chief Minister of the state, Bhupendra Patel, is taking stock of the area where a massive fire broke out inside a gaming zone, is the latest update that we have received from our sources. Remember, at least 27 people unfortunately were killed after a massive fire broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot city on Saturday evening, which was yesterday evening. An FIR has also been registered in the incident, and according to the updated reports, we are learning that Rajkot game zone manager and his partner have been detained by the police so far for the investigation. And the last report that we had was that Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel had also ordered a special investigation team to be formed and assigned in the order to investigate the entire incident. And the latest report that we have received is that the Chief Minister has now himself gone to the place to take stock of the area where this massive fire broke out and took several lives. We have CNN News 18's Pranav Patel joining us on the phone line. Pranav जी, हमें बताइए कि जांच पड़ताल में अभी तक क्या सामने आया है? सुनने में आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर वहां पे जा चुके हैं देखने के लिए कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है। ग्राउंड से क्या खबरें आ रही हैं? कह सकता हूं जिस तरह से लास्ट शाम को ये घटना बनी थी उसमें 28 लोगों की डेथ कंफर्म हो चुकी है, और भी अभी भी और डेथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आज राज्य के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल वो वहां पर पहुंचे थे, उनके साथ राज्य के जो गृह मंत्री है वो भी वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने पूरी जो घटना वहां पर जो घटी हुई थी टीआरपी मॉल में, वहां पर उन्होंने वहां निरीक्षण किया था और उन्होंने देखा था कि घटना किस तरह से बनी है। उसके बाद वो पहुंच रहे हैं जहां सब डेड बॉडी रखी गई है, जिनका अभी डीएनए करना बाकी है, क्योंकि जो डेड बॉडी इतनी वो बर्न हो चुकी है कि वो डेड बॉडी पहचानी नहीं जा सकती है, परिवार को वो दी नहीं जा रही है, क्योंकि उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनका फेस है या वो पहचान नहीं पा रहा, इसलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट के माध्यम से ये बॉडी का अभी टेस्टिंग हो रहा है, और डीएनए के लिए भी सबके जो रिपोर्ट है
वो जो गांधीनगर की सबसे बड़ी लैब है वहां पर यहाँ भेजे गए हैं। और साथ में अभी जो अपडेट मिल रहा है 10 से भी ज्यादा लोगों की अभी यहाँ पर पुलिस ने अरेस्ट किया है, क्योंकि उनके जो मालिक थे जो टीआरपी मॉल जो जोन के, उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है। साथ में ही सरकार ने त्वरित राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक एसआईटी की रचना की है। एसआईटी की रचना में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस कमेटी में रखे गए हैं। तो साथ में ही इनको रिपोर्ट देने को आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह में ये पूरा रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया जाए कि ये गेम जोन में जिस तरह से आग लगी है, आग कैसे लगी, किसकी यहाँ पर नेग्लिजेंसी मिली यानी बेदरकारी किसकी मिली है, ये बात यहाँ पर करनी है। साथ में ही अभी जिस तरह कल शाम को जो घटना बनी, कल शाम को ही जो राज्य के गृह मंत्री है हर्ष संघवी वो पहुंच गए थे, लेकिन आज सुबह ही जो मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे हैं। पूरी जो घटना थी वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया था। बाद में वो जा रहे हैं जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ पर सब डेड बॉडी वहां पर रखी गई है, वहां पर वो पहुंचेंगे, परिवार के जो सभी हैं उनके साथ वो मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में ये पहले भी ऐसी घटनाएं बढ़ चुकी थी। आप मोरबी दुर्घटना आपको सबको पता है कि यहाँ पर 135 पीपल वहां पर डेथ हो चुके थे। उसी तरह यहाँ पर बड़ौदा में भी एक ऐसी जो बोट होती है, जो लेक में बोट घूम रही थी, उसमें भी कई जो चिल्ड्रंस वहां पर बैठे थे वो बोट वहां पर पलटी थी और उसमें भी 22 पर्सन की डेथ हो चुकी थी। उसके पहले भी सूरत में एक घटना बनी थी, उसमें भी 22 या 25 लोग हैं जो बच्चे हैं वो वहां पर डेथ हुए थे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा था वहां पर। और आज जो घटना बनी है, जो कल शाम की जो घटना है, उसमें भी ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने फायर एनओसी जो वहां पर आरएमसी है उनकी वहां पर उन्होंने फायर एनओसी नहीं ली थी और वो ऐसे ही वो चला रहे थे। साथ में ही उन लोगों ने कल सैटरडे संडे के हिसाब से जो जैसे पब्लिक आ रही थी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जो पर टिकट 300 थी, लेकिन उन्होंने 99 में पर पर्सन को एंट्री दी थी। इसलिए पब्लिक का भी वहां पर रस बढ़ा था, पब्लिक ज्यादातर वहां पर आई थी। और ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि वहां पर कुछ वेल्डिंग का काम किया जा रहा है, यानी कोई चीज पर वहां पर काम हो रहा था, वहीं पर वो वेल्डिंग की वजह से वहां पर आग है वो ज्यादा बड़ी थी और उसके कारण ही उसमें जितना भी वहां पर फ्लोरिंग था वो प्लास्टिक का फ्लोरिंग था, जितना भी वहां पर उन्होंने जो साधन रखे थे वो भी प्लास्टिक के थे, रबर के जो चीज है वो उन्होंने यहाँ पर यूज की थी। प्रणव जी हमारे साथ बने रहिए, मैं आपसे और सवाल पूछूंगी इस चीज के बारे में। वी हैव गॉट सम रिएक्शंस कमिंग इन विद इन द सेम स्टोरी। लेट्स टेक अ लुक एट दोस फर्स्ट एंड देन वी शैल गो बैक टू आवर रिपोर्टर टू कलेक्ट मोर डेटा अबाउट व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्ड देयर इनसाइड दैट मॉल। ये बहुत कमनसीब और बहुत दुखद घटना हुई है। उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए एक सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी और क्या कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई है, फ्यूचर में ऐसा बनाव नहीं बने उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम पूरी तह तक जाके उसकी पूरी तहकीकात करेंगे। प्रणव पटेल continues to stay with us on the broadcast. प्रणव जी, बेहद दुखद घटना वहां पर घटी है। जैसा कि आपने बताया कि बॉडीज इतनी ज़्यादा जल चुकी हैं कि फैमिली वालों को अभी तो बॉडी दी नहीं जा रही है क्योंकि डीएनए सैंपल्स भी उनसे कलेक्ट करना बाकी रह रहा है। लेकिन आमतौर पर प्रणव जी हमने देखा है कि इस तरीके के मॉल और गेमिंग जोन्स में काफ़ी सारे एग्जिट जोन्स होते हैं, एग्जिट गेट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर मॉल में जहां पे ये दुखद घटना घटी है वहां पे क्या कोई एग्जिट गेट नहीं था? कितने लोग वहां पे पहले फंसे थे जिनमें से अनफॉर्चुनेटली इतने लोगों की जान चली गई है? इस बारे में हम क्या जानते हैं जांच पड़ताल के हिसाब से? कह सकता हूं वहां पर एग्जिट गेट ओनली फॉर वन ही रखा था, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही रखा था। जो नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके हिसाब से आप इतना बड़ा गेम जोन बना रहे हैं, वो 3 मंजिला वो पूरा गेम जोन उन्होंने खड़ा किया था। मैंने पहले भी बोला कि वो पूरा जो गेम जोन है उन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो लोखंड का यूज किया, साथ में ही उन्होंने वहां पर प्लास्टिक या रबर सबसे ज्यादा वहां पर यूज किया गया था। तो इसलिए वो पूरा जो आग लगी
वो पहले वहां पर वो लोग वहां थोड़ा सा काम कर रहे थे, वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था, यानी जो लोखंड है उनको वो जोड़ने का काम हो रहा था वहां पर जो स्पार्क हुआ, स्पार्क के ये पूरा ये आग है वहां पर बढ़ गई थी, क्योंकि वो आसपास का पूरा एरिया ओपन है, वहां पर हवा भी ज्यादा चल रही थी, लेकिन वहां उनके पास फायर की एनओसी नहीं थी। ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि इतना बड़ा गेम जोन इन लोगों ने खड़ा किया है, जहां पर पर डे हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए। और अभी समर का टाइम चल रहा है, समर में या वेकेशन का टाइम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग, इसमें भी सैटरडे और संडे ज्यादातर लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वहां पर वो जाते हैं। तो उसी जो घटना बनी कल, उन्होंने ऐसा स्कीम लॉन्च की थी, तो उसकी पर टिकट 300 रुपीज थी, लेकिन उन्होंने 99 में पर पर्सन को एंट्री दी थी। और कल ऐसी घटना बनी थी कि वहां पर पब्लिक का रश था वो सबसे ज्यादा हो गया था। और वहां पर जितने पब्लिक पे जो हमको जो न्यूज 18 को जो सामने खबर आई है, तो जितने भी लोग जो वहां पर फायर लगी थी, तो फायर के बाद लोग बचने के लिए थर्ड फ्लोर पर चले गए थे। ये सबसे बड़ी घटना यही बनी थी कि थर्ड फ्लोर पर वो चले गए, क्योंकि आग फर्स्ट फ्लोर में लगी थी, लेकिन लोगों को लगा कि हम बचेंगे, ऊपर जाएंगे, इसलिए सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे थर्ड फ्लोर पर। लेकिन आग इतनी बढ़ गई मिनटों में कि पूरा जो गेम जोन है उसको कवर कर लिया। इसलिए जो थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर जो लोग थे वो नीचे नहीं आ पाए, वो बाहर नहीं निकल पाए। और सबसे बड़ी बात यही थी कि इन लोगों ने जो एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही था, डॉम्स के विरुद्ध इन लोगों ने गेम जोन खड़ा किया था। सबसे बड़ी बात, फायर की एनओसी इनके पास नहीं थी। वहां का लोकल जो प्रशासन है, आरएमसी, राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनके पास कोई एस्टेट के पास से कोई भी उनके पास लाइसेंस या उनके पास कोई परवानगी उन्होंने नहीं ली थी, और ऐसे ही उन्होंने चला दिया था। इसलिए ये जो आग की घटना बनी, उसके पीछे ये 3 बड़ी जिम्मेदारी मान सकते हैं, क्योंकि फायर एनओसी नहीं थी, एंट्री एग्जिट एक ही था, और साथ में ही जो फायर था उसमें बोला कि आप फर्स्ट में लगा था, लेकिन वो थर्ड तक चला गया, थर्ड फ्लोर तक। इसलिए जो लोग ऊपर फंसे हुए थे वो सब लोग बंद हो चुके हैं, और इसीलिए डीएनए की मदद से इन लोगों की परिवार को दिया जाएगा इनकी बॉडी, और बॉडी अभी भी जो राजकोट की सिविल हॉस्पिटल वहां पर रखी गई है। बिल्कुल प्रणव जी, हमें वो सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट सो मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ